بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ دعوت مینیو کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ یہ مینیو بچے بڑے سبھی کا فیوریٹ ہونے والا ہے، کیونکہ میٹھے میں آپ کے ساتھ لبے شیری کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ پیزا بنائیں گے ود پرفیکٹ ڈو کے ساتھ، چکن شاشلک ود ایگ فرائیڈ رائس بنائیں گے، مٹن لورز کے لیے مٹن وائٹ ہانڈی کی ریسیپی ہوگی، اور بہت ہی مزیدار اور منہ میں گھل جانے والے بہاری کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم لبے شیری بنائیں گے، جس کے لیے پتیلی میں نے 1.5 لیٹر ٹیٹرا پیک ملک ایڈ کیا ہے۔ آپ فریش ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ 4 ٹیبل سپون میں نے ونیلا کسٹرڈ پاؤڈر تھوڑے سے ملک میں مکس کر کے اس میں ایڈ کیا تھا اور تھوڑا کوک کر لیا تھا۔ ونیلا کسٹرڈ ایڈ کرتے ہوئے ویڈیو میں سے اسکپ ہو گئی ہے۔ کسٹرڈ تو آلموسٹ سب کو بنانا آتا ہے۔ یہاں پر میں نے 1.5 کپ کلرڈ سوئیاں جو ہوتی ہیں وہ بوائل کر کے ایڈ کر دی ہیں۔ 1 کپ شوگر ایڈ کی تھی۔ شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ نٹس ایڈ کر دیں گے۔ میں یہاں پر بادام، پستہ، کاجو اور ناریل ایڈ کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ رس بھری اور کشمش وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں اس میں، لیکن میرے بچے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں، تو میں وہی چیزیں ایڈ کرتی ہوں جو میرے بچے پسند کرتے ہیں۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کیا اسکپ کرنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ایڈ کر دیجئے، جو نہیں پسند وہ میری طرح آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں کسٹرڈ کو کوک ہوتے ہوئے۔ یہ دیکھیے اتنا تھک چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تو یہ مزید تھک ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اتنی ہی کنسسٹنسی رکھنی ہے اس کی۔ یہ دیکھیے ٹھنڈا ہونے کے بعد کسٹرڈ کی کنڈیشن یہ کتنا تھک ہو گیا ہے۔ ابھی میں نے اس میں کریم ایڈ نہیں کی، پھر بھی یہ بہت زیادہ تھک ہے۔ 1/2 کپ ٹیٹرا پیک کی کریم ایڈ کر دیں گے۔ کریم ایڈ کرنے سے بہت ہی رچ اور کریمی ٹیکسچر ہو جاتا ہے کسٹرڈ کا۔ کریم اچھے سے مکس کر کے یہاں پر میں فریش فروٹس ایڈ کر رہی ہوں، جس میں نے یہاں پر بناناز اور ایپل لیے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ پائن ایپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو کاکٹیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے 2 کلر کی جیلی لی ہے۔ آپ کو جو بھی جیلی پسند ہے، جس کلر کی آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ 1 پیکٹ جیلی اگر آپ نے کوک کرنا ہے تو وہ تقریباً 1/4 کپ یا آدھا کپ پانی لے کے آپ اس میں کوک کریں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے، تب آپ کی جیلی کی اس طرح سے سالڈ فارم بنے گی اور جیلی کی شیپ بھی خراب نہیں ہوگی۔ آپ نے جیلی کے پیکٹ کے اکارڈنگ جیلی کو کوک نہیں کرنا، اس سے پانی تھوڑا کم رکھنا ہے۔ سرونگ ڈش میں اب ہم اس کو اسمبل کریں گے۔ پہلے ہم سوئیوں والا کسٹرڈ نکالیں گے، پھر جیلی اوپر ڈالیں گے اور دوبارہ سے کسٹرڈ کی لیئر دے کے لاسٹ میں دوبارہ سے جیلی سے گارنش کر لیں گے۔ 2 سے 3 لیئرز میں ہم یہ سارا پروسیس کریں گے اسمبلنگ کا۔ یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اس میں جو بھی چینجز کرنا چاہیں، جو چیزیں آپ کو پسند ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، جو نہیں پسند وہ آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں رس بھریاں، کشمش اس طرح سے چیزیں ایڈ کرتے ہیں، لیکن میرے بچے یہ چیزیں پسند نہیں کرتے، تو میں وہی چیزیں ایڈ کرتی ہوں جو میرے بچے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ لاسٹ میں جیلی اور نٹس کے ساتھ اس کو گارنش کریں گے اور خوب اچھے سے چل کر کے اس کو سرو کریں گے۔ کسٹرڈ بناتے ہوئے میں نے وینیلا کسٹرڈ یوز کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اسٹرابیری، مینگو، بنانا جو بھی فلیور یوز کرنا چاہیں کسٹرڈ بناتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار، بہت ڈفرینٹ اور جھٹپٹ بننے والی ریسیپی شیئر کروں گی۔ بہاری کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی، اور اتنے مزیدار یہ بنے تھے، اتنے سافٹ اور جوسی تھے کہ ہاتھ بھی لگا رہی تھی تو بوٹی گھول رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی میرے ہاتھ میں، جیسے روئی ہوتی ہے اس طرح سے ان کا ریشہ بنا ہوا تھا۔ بہت مزیدار تھے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا ان کو۔ بہت ہی آسانی سے، بہت آسان طریقے سے بنائیں گے اس کو۔ 500 گرامز چکن لیا ہے، بون لیس چکن ہے، اس کو میں نے باریک باریک سٹرپس میں کٹنگ کیا ہوا ہے۔ 4 ٹیبل سپون یہاں پر ہنکڈ یوز کر رہی ہوں۔ 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں۔ 1 پیاز کو فرائی کر کے چاپ کر کے وہ ڈال دیں گے۔ میں یہاں پر شان کا بہاری مسالہ یوز کر رہی ہوں، صرف یہی ڈالوں گی، کوئی اور سپائسز نہیں ڈالوں گی۔ 2 ٹیبل سپون بھر کے بہاری کباب مسالہ ڈالیں گے۔ اتنا مزیدار ٹیسٹ تھا اس کا، اتنا زبردست تھا، یوں ہی لگ رہا تھا جیسے مہنگے ریسٹورنٹ سے لے کر آئے ہوں ہم۔ اس کو اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ کر کے تقریباً 2 گھنٹے آپ نے ضرور چھوڑنا ہے۔ 2 ٹی سپون یہاں پر میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میرینیٹ کر کے میں فریج میں اس کو رکھ دوں گی۔ تقریباً میں تو اوور نائٹ چھوڑوں گی، آپ اس کو کم از کم بھی 2 گھنٹے ضرور چھوڑیے گا۔
ताकि चिकन पे स्पाइसेस अच्छे से मैरिनेट हो जाए और अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आए। अगर आप बीफ या मटन से बनाएंगे बिहारी कबाब तो आप उसमें कच्चा पपीता ज़रूर डालिएगा ताकि जल्दी गले। चिकन में पपीते की ज़रूरत नहीं है, चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। मैरिनेट करके रखेंगे तभी बोटी सॉफ्ट बनेगी। इस तरह से ये देखिए मैंने कटिंग की है, इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटी हुई हैं। शाशलिक स्टिक ली है, इसको मैं शाशलिक स्टिक पे परो लूँगी और देखिए किस तरह से मैं शाशलिक स्टिक के ऊपर ये बोटी लगा रही हूँ। इसी तरह से मैंने सब लगाई हैं और एक स्टिक के ऊपर मैंने 3 स्ट्रिप्स को फिल किया है। इस तरह से सारी स्टिक्स को फिल करके मैं फ्रिज में ढाँप के इसको क्लीन पेपर लगा के तो ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। जो चिकन की स्ट्रिप्स कट की हैं वो बारीक कट की हैं, मोटी नहीं है। बारीक कट करेंगे तभी वो बिहारी बोटी या बिहारी कबाब की लुक देगा। आप इनको बना के रख भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। अब मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, पैन में डाल के गरम कर लिया है। इसको 3 to 4 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 3 to 4 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे वरना हमारे जो चिकन है वो ड्राई बनेगा। और ये इतने सॉफ्ट और जूसी बनी थी कि मैं इसको हाथ भी लगा रही थी तो ये बोटी टूट रही थी और टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आया था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। अगर तो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई है जो मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए ये रेसिपीज़ लेकर आती हूँ ताकि मैं और कोशिश कर सकूँ आपके लिए न्यू से न्यू रेसिपी लेकर आने की। ये देखिए जब एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, कुक हो गई है, तो मैंने उसकी साइड चेंज की है। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और रायते के साथ सैलड के साथ सर्व करूँगी। अगर तो आप न्यू है मेरे चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सीख कबाब, शामी कबाब, चपली कबाब, इन सबसे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट था, बहुत मज़ेदार थे। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बोटी बनी है कि हाथ भी लगा रही हूँ तो घुल रही है। टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बाय स्टेप सब मेथड आपको समझाऊंगी, डो में और फिलिंग में जो भी टिप्स और ट्रिक्स हैं प्रॉपर हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, छान लिया है, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 एग, हाफ टी स्पून विनेगर ऐड करेंगे और 1 इंस्टेंट ईस्ट का साशे ऐड करेंगे। ईस्ट का 1 साशे हम 1 kg मैदे में इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं मैदे में डायरेक्ट साशे डाल रही हूँ। 1 साशे 11 ग्राम्स के बराबर होता है, यानी 1 टेबलस्पून बन जाता है और 1 टेबलस्पून ईस्ट हम 1 किलो मैदे में इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट ईस्ट को डायरेक्ट मैंने ऐड किया है और जब मैं इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदूंगी तो ये डायरेक्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा खमीर होने वाला, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया वो मैदे में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छे से गूंद लेंगे, इसको नीट सी डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। हमें सॉफ्ट सी डो बनानी है। जितनी सॉफ्ट डो बनेगी उतने ही हमारे पिज़्ज़ा की बेस भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी जैसे मार्केट वालों की होती है। अब ये जो डो मैंने बनाई है इसको सरफेस पे मैं निकाल लूँगी। सरफेस को पहले ग्रीस कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे ताकि डो हमारी चिपके नहीं। इस तरह से देखिए मैं जैसे हाथ से हथेली से स्ट्रेच कर रही हूँ डो को। ये प्रोसीजर अगर आप करेंगे तो आपकी डो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। 5 से 6 दफ़ा मैंने डो को इस तरह से बेंड किया है। ये देखिए डो कितनी सॉफ्ट और नीट बनी है। अब मैं इसको ऑयल लगा के किसी वार्म जगह पर रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि ये खमीर हो जाए और वॉल्यूम में डबल हो जाए। आप भी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बेस भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। क्लीन पेपर लगा के मैं इसको 1 घंटे के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखने लगी हूँ। माइक्रोवेव ओवन चलाना नहीं है, बंद ओवन में ही रख दूंगी। 1 घंटा हो चुका है, डो डबल हो चुकी है, खमीर हो चुकी है। अब मैं इसको पंच आउट करूंगी और इसमें मौजूद जितनी भी एयर है वो निकाल लेंगे और इसको दोबारा से नीट कर लेंगे। सरफेस को साफ करके थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और सारी डो को अच्छे से नीट करेंगे, बेल लेंगे। इस डो से मेरे 2 एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ाज रेडी हुए थे। आप इस तरह से डो को बना के 10 मिनट के लिए बेक कीजिएगा और उसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं इसको पैन में सेट करके फोक से प्रिक करके तो तकरीबन 20 मिनट के लिए ढाँप के सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे, जिससे कि हमारी डो थोड़ी सी फ्लफी होगी, फूल जाएगी और सॉफ्ट बनेगी जब हम इसको बेक करेंगे। फोक से इसलिए प्रिक किया जाता है कि बेस हमारी एक लेवल में बेक हो, ऊंची नीची ना बने। अब पिज्जा की फिलिंग रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। 500 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। अब इसको तेज फ्लेम पे 3 से 4 मिनट फ्राई करूंगी ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और जो चिकन
चिकन में मौजूद जूसेस होते हैं वो अंदर लॉक हो जाएं। अगर चिकन को स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो चिकन अपने जूसेस रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से ये ड्राई बनेगा। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से भून लेंगे चिकन के साथ, ताकि स्पाइसेस अच्छे से चिकन पर कोट हो जाएं। चिकन को फुल डन कर लेंगे, अच्छे से कुक करेंगे, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना कुक करेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए और चिकन भी फुल कुक हो जाए। अब मैं इसमें वेजीज ऐड करूंगी, जिसमें मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर और शिमला मिर्च ली है, जिनको मैंने जूलियन कट कर लिया है, और चिकन का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। वेजिटेबल्स को कुक नहीं करना, चिकन के साथ अच्छे से फोल्ड करना है, ताकि वेजिटेबल्स पे भी स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए और स्पाइसेस वेजिटेबल्स को भी कोट कर लें। आपने देखा घर के स्पाइसेस से ही ये फिलिंग रेडी होती है, बहुत मजेदार बनती है। ये देखिए सेकंड प्रूफिंग के बाद डो कैसे फूल गई है। अब मैं इस पे पिज्जा सॉस डाल रही हूँ, इसको अच्छे से बेस के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। पिज्जा की डो जब भी आप रेडी करें उसको सेकंड प्रूफिंग के लिए जरूर छोड़ा करें, उसकी वजह से पिज्जा की डो बहुत ही सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी रेडी होती है। हमने जो डो में विनेगर ऐड किया था उसकी वजह से भी बहुत ही सॉफ्ट बनती है डो। अब मैं इस पे मोज़रेला और चेडर चीज दोनों मिक्स करके डाल रही हूँ और जो चिकन फजीता फिलिंग रेडी की थी वो डाल रही हूँ। फिलिंग डालने के बाद चीज मैंने दोबारा से ऐड की है और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही चीजी, बहुत ही मजेदार बनता है ये पिज्जा, आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। 180 डिग्री पर मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक किया है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। चिकन फजीता पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आप भी लो बजट में आप पिज़्ज़ा इजीली घर पर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शाशलिक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत इजी रेसिपी है। 500 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। कैप्सिकम और अनियन को भी मैंने क्यूब्स में कट किया है। यहाँ पर मैंने 2 कैप्सिकम ली थी और 2 मीडियम साइज की अनियन ली थी, जिनको मैंने क्यूब्स में कट किया है। सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने केचप और चिली गार्लिक सॉस लिया है। पौना कप मैंने केचप लिया है और 1/3 कप चिली गार्लिक सॉस लिया है। केचप और चिली गार्लिक सॉस को दोनों को मिलाएंगे तो 1 कप बन जाएगी सॉस। 2 टेबलस्पून चिली सॉस जाएगा, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा, क्योंकि जो सारे सॉसेज ऐड कर रहे हैं वो ऑलरेडी सॉल्टी होते हैं। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिकन को मैरिनेट करेंगे, जो मैंने आपको सारे स्पाइसेस बताए हैं वो सारे ऐड कर देंगे। सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर भी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था और इसको अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे, ताकि चिकन में स्पाइसेस का टेस्ट आए। कॉर्नफ्लोर जब ऐड किया जाता है उसकी वजह से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनता है, मुंह में घुल जाने वाला बनता है। अब हम चिकन को कुक कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने पैन में ऑयल डाला है और पैन को गर्म कर लेंगे, फिर हम चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को हाई फ्लेम पर हमने कुक करना है, लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, वरना चिकन अपने जूसेस रिलीज कर देगा और सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए चिकन को हमने हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। 7 से 8 मिनट के लिए चिकन को कुक करेंगे, ताकि चिकन फुल डन हो जाए और इसमें जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। चिकन कुक हो चुका है। अब हम शाशलिक की सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए पतीली में मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसमें 3 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए थे, जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। जब गार्लिक की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें केचप और चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे। चिली गार्लिक सॉस टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जरूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे, 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे। सॉस की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको जितनी सॉस बनानी है आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस और सॉसेज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। जो चिकन रेडी किया था वो अब इस सॉस में ऐड कर देंगे। चिकन को सॉस के साथ थोड़ा सा कुक कर लेंगे, ताकि अगर चिकन में थोड़ी सी कसर है तो चिकन प्रॉपर कुक हो जाए और सॉस का फ्लेवर भी चिकन में आ जाए। अब जो हमने कैप्सिकम और अनियन कट की हुई थी वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इनको सेपरेट से फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने थोड़े से पानी में डिजोल्व कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। जितनी थिक आपको सॉस चाहिए उतना ही आप कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा। सारा कॉर्नफ्लोर एक साथ नहीं ऐड करेंगे, वरना सॉस ज्यादा थिक हो जाएगी। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे सॉस की। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर भी ऐड की थी। अब हम एग फ्राइड राइस बनाएंगे, जिसके लिए पतीली में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। 2 एग्स को अच्छे से बीट कर लिया है। एग्स में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया।
एग्स को 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और जब एग कुक हो जाएगा तो इसको हम स्क्रैम्बल कर लेंगे, यानी तोड़ लेंगे और पीसेस बना लेंगे इसके। इसी ऑयल में एक अनियन और गार्लिक के 2 जवे लिए हैं जिनको मैंने फाइन चॉप करके ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे, कलर बिल्कुल भी नहीं देना। कुछ वेजेस ऐड करेंगे जिसमें कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज ली है जिनको मैंने चॉप करके ऐड किया है। 1 से 2 मिनट के लिए इनको भी सौते करेंगे। वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना, इनका क्रंच पकाया रहना चाहिए। स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने राइस बॉयल करते हुए भी ऐड किए थे, इसलिए आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। चिकन पाउडर 1 टीस्पून और जो हमने एग रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। अब इसमें राइस ऐड कर देंगे। राइस मैंने फुल कुक किए हैं। फ्राइड राइस में हमेशा राइस फुल कुक करके ही ऐड किए जाते हैं, हाफ डन नहीं किए जाते इसमें, क्योंकि फ्राइड राइस में हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी होती है, इसको दम वगैरह नहीं लगाते। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। लास्ट में ग्रीन अनियन का ग्रीन वाला पार्ट इसमें ऐड करेंगे और शाशलिक के साथ एग फ्राइड राइस सर्व करेंगे। शाशलिक स्टिक के ऊपर मैंने चिकन और वेजेस को इस तरह से असेंबल करके सर्व किया है। आप भी अगर इस तरह से सर्व करना चाहें तो इस तरह से सर्व कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी मैंने आपको सर्विंग दिखाई है। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उस तरह से सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ मटन व्हाइट हांडी की रेसिपी शेयर करूंगी। मट्टी की हांडी में 5 to 6 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। 2 टेबलस्पून भर के बटर ऐड करेंगे। आप खाली घी या ऑयल में भी बना सकते हैं। जूलियन कट अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। 1 टीस्पून जीरा डाल के इसको 1 से 2 मिनट ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि सारे ऑयल और बटर में इनका टेस्ट आ जाए। मेरे घर में तो ये फरमाइश पे बनवाया जाता है, आप भी एक दफा ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी और वो भी दोबारा से फरमाइश जरूर करेंगे। मैंने इसमें 1 तेज पत्ता और 2 छोटी इलायची भी डाल के कड़कड़ा ली थी। मैंने मटन को बॉईल करके रखा हुआ है, आप कच्चे मटन से भी बना सकते हैं। मटन को बॉईल करते हुए मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाली थी, और जब अच्छे से मटन कुक हो गया था तो मैंने उसकी यखनी थोड़ी सेपरेट कर ली और मटन को हम अपने हांडी में ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज की प्याज ली थी जिनको मैंने बॉईल करके पेस्ट बना लिया है। साथ ही में मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें डाल दिया था। अब इतना भुनेंगे प्याज और जिंजर गार्लिक को कि इसमें जो जिंजर गार्लिक की कच्चेपन की स्मेल है वो खत्म हो जाए। अनियन को जब बॉईल करके पेस्ट बना के ऐड किया जाता है तो इसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की बनती है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर। हांडी को थोड़ा चटपटा टच देने के लिए 1 टीस्पून मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। हाफ कप हंग कर्ड इसमें ऐड करेंगे। दही का पानी मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। दही को 10 से 15 मिनट के लिए स्ट्रेनर में आप रख देंगे तो उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, वो दही इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको अब मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन खत्म हो जाए और स्पाइसेस का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, क्योंकि जब मैंने मटन को बॉईल किया था तब भी उसमें सॉल्ट ऐड किया था। छोटी छोटी जो मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, टिप्स देती हूँ, आप उनको फॉलो करते हुए अगर बनाएंगे तो आपका खाना भी बहुत ही लजीज बनेगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट्स जैसा ही टेस्ट आपको घर में मिलेगा और आपके घर वाले आपको दाद जरूर देंगे। जब हम भून लेंगे अच्छे से मसाले को तो इसमें हाफ कप टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस ऐड करेंगे। जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें और थोड़े से ड्राई नट्स ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसमें मैंने जायफल और जावित्री को भी शामिल किया था। गरम मसाला मेरा होममेड है, आप मार्केट वाला भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी स्मूथ टेक्सचर की ग्रेवी बनी है इसकी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से रेसिपीज को इजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आप भी मेरी तरह मटन को पहले बॉईल कर लेंगे तो आपने देखा कितनी झटपट रेसिपी तैयार हुई है, और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो घर में मौजूद होते हैं उन्हीं से मैंने इस रेसिपी को तैयार किया। बहुत ही डिलीशियस बनती है। मलाई सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है, और इस पे जो सॉस डाली जाती है ना तो वो टमाटर से बनेगी, ना प्याज यूज़ होगी, ना लहसुन, ना अदरक, कोई झंझट नहीं है। सबसे पहले सीख कबाब रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 750 ग्राम्स मशीन से 2 दफ़ा निकलवाया हुआ कीमा लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली फ्लेक, 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली
فلیکس اور سالٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ بھنا کٹا زیرہ 1 ٹی اسپون، چاٹ مسالہ 1 ٹی اسپون، بھنا کٹا دھنیا 1 ٹیبل اسپون بھر کے، گرم مسالہ پاؤڈر ½ ٹی اسپون، اور جب میں نے مسالے سارے مکس کیے تھے قیمے میں تو 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے کسی بھی اچھے سے برانڈ کا سیخ کباب مسالہ ایڈ کیا تھا۔ سب سے پہلے ہری مرچیں اور پیاز کو میں سیپریٹ چاپ کروں گی اور اس کا پانی نچوڑ کے میں قیمے میں ایڈ کروں گی۔ اگر ہم پانی کے ساتھ ہی پیاز کو ایڈ کر دیں تو ہمارے کباب کبھی بھی بائنڈ نہیں ہوں گے اور کباب بناتے ہوئے بھی شیپ بہت مشکل سے بنے گی۔ اب پیاز کا پانی نچوڑ کے میں نے قیمے میں ایڈ کر دیا ہے اور سارے اسپائسز جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ بھی ایڈ کر دیے ہیں، ساتھ میں ہرا دھنیا ایڈ کیا ہے اور اس کو 7 سے 8 منٹ اچھے سے مسل لیں گے قیمے کو، تاکہ جب ہم ان کے کباب بنائیں تو ان میں بائنڈنگ بہت اچھی آئے اور بہت ہی سافٹ اور جوسی کباب بنے۔ کباب بنانے کے لیے میں چاپ اسٹک یوز کر رہی ہوں، آپ کسی بھی پینسل اسٹک یا اسپون کی بیک سائڈ سے سیخ کباب کی شیپ دے سکتے ہیں۔ سارے کبابس کی شیپ میں اسی طرح سے دے لوں گی اور قیمے کو جب مکس کریں گے تو اس کے بعد آدھا گھنٹہ فریج میں ضرور رکھیے گا تاکہ قیمے میں اچھے سے اسپائسز کا ٹیسٹ آ جائے۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اب میں ان کو شیلو فرائی کروں گی۔ پین کو میں نے گرم کر لیا ہے، 2 سے 3 چمچ آئل اس میں ایڈ کیا ہے۔ آئل زیادہ ایڈ نہیں کریں گے، بہت کم آئل میں ہمیں کبابس کو فرائی کرنا ہے۔ 2 سے 3 منٹ ایک سائڈ سے کوک کریں گے اور 2 سے 3 منٹ ہی دوسری سائڈ سے کوک کریں گے، کیونکہ قیمہ ہمارا ڈبل مشین کا ہے تو یہ بہت جلدی گل جائیں گے، اندر سے بہت سافٹ بنیں گے۔ اگر ہم اوور کوک کر دیں گے کباب ہارڈ ہو جائیں گے اور اندر سے سافٹ اور جوسی بھی نہیں بنیں گے۔ کباب ہمیشہ لو ٹو میڈیم فلیم پر کوک کیے جاتے ہیں، ہائی فلیم پر کبھی بھی کباب کوک نہ کیجیے گا ورنہ ہمارے کبابس پہ کلر آ جائے گا اور اندر سے قیمہ کچا رہے گا۔ میں نے بیف کا قیمہ یوز کیا ہے، آپ یہاں پر چکن، مٹن جو بھی قیمہ یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کا بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اب کباب ہمارے سارے ریڈی ہو چکے ہیں، باقی کے کباب بھی میں نے اسی طریقے سے کوک کر لیے تھے۔ اب میں سوس ریڈی کروں گی جو کہ اس کی اسپیشل سوس بنتی ہے۔ اس والی سوس کو نہ کوک کرنا پڑتا ہے، نہ اس میں میدے کا یوز ہے جیسے وائٹ سوس بنائی جاتی ہے، بہت کوئک ہے، بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ ½ کپ میں نے مایو لی ہے، ½ کپ ٹیٹرا پیک کا ملک ایڈ کر رہی ہوں، آپ فریش ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ½ کپ دہی اور ½ کپ ٹیٹرا پیک کی کریم ایڈ کروں گی اس میں۔ اس سوس کو آپ بہت سی چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں، برگرز میں، اسٹیکس وغیرہ پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ وائٹ سوس کی جگہ یہ والی سوس یوز کیجئے، اس کا بہت ہی ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ۔ اور اس سوس میں کچھ اسپائسز جائیں گے، اس میں میں ½ ٹی اسپون اوریگینو ایڈ کروں گی، ½ ٹی اسپون بھنا کٹا زیرہ، ½ ٹی اسپون ریڈ چلی فلیکس، ½ ٹی اسپون سالٹ، ½ ٹی اسپون چاٹ مسالہ۔ آپ اس میں فریش کرش کر کے گارلک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کا بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اب اس سوس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہ سوس ہماری ریڈی ہے کبابس کے اوپر ڈالنے کے لیے۔ میں گرل پین میں ہی سرو کروں گی، کباب کے اوپر میں نے سوس پور کر دی ہے، چولہا آن کر دیا تھا اور اوپر سے تھوڑے سے بٹر کو میں نے میلٹ کر کے ایڈ کیا ہے، اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بٹر کا۔ تھوڑی سی موزریلا چیز کو میں کدوکش کر کے ڈال دوں گی، آپ کے پاس چیز اگر ہے تو ڈال سکتے ہیں، نہیں ہے تو اسکپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تھوڑے سے وائٹ تل ڈالیں گے، انین رنگز کے ساتھ گارنش کریں گے اور اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرو کریں گے۔ بہت ہی مزیدار کباب لگتے ہیں اس سوس کے ساتھ۔ آپ ایک دفعہ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ گریوی والے سالن یہ تو آپ نے آلموسٹ ٹرائی کیے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، میری گارنٹی ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ اب میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو، اس سوس کے ساتھ بہت ہی سافٹ اور جوسی کباب بنے تھے اور اس ڈپ سے تو 4 چاند لگ گئے تھے اس کے ٹیسٹ کو۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اگر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے۔